السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل طیبہ اردو ناولس. فار انسٹنٹ نوٹیفیکیشن لائک دا ویڈیو، سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. ضدی جنونیت از قلم سمیہ حورین فاطمہ قسط نمبر 5. عدنان صاحب اور حماد کو گئے دوپہر سے شام ہو گئی تھی، پر خدیجہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا. محلے والے الگ مسز عدنان کی جان کھائے جا رہے تھے. زیفہ سب کو جواب تو دے رہی تھی، پر بولنے والوں کی زبان تو ہم پکڑ نہیں سکتے، وہ پھر بھی بولنے سے باز نہیں آتے. شہریار نے جب گاڑی روکی تو یہ ایک سنسان جنگلی علاقہ تھا. ہر طرف گھنا جنگل تھا. ایک سائٹ پہ کھڑا شہریار جائزہ لے رہا تھا. لکڑی کا ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا جہاں خدیجہ اور اس بچی کو لا کے پھینکا تھا. خدیجہ چکراتے سر کے ساتھ آنکھ کھولے سامنے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. اب کیا کرنا ہے؟ نعمان رفیق نے نعمان سے پوچھا. کرنا کیا ہے؟ پہلے ہم مزے لیں گے، پھر باقی لڑکیوں کے ساتھ انہیں بھی باہر بھیج دیں گے. ہاں ہاں چل تو بچی پکڑ لے، میں اس لڑکی کی اکڑ نکالوں. ان کی گھٹیا گفتگو سنتے شہریار کا دل کیا ابھی ان کو دفن کر دے. خدیجہ بھی ان کی بات سنتی خوف اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی. پلیز انکل، مجھے میری ماما کے پاس جانے دے. بچی روتے ہوئے التجا کر رہی تھی. خدیجہ نے آگے بڑھ کر بچی کو اپنی آغوش میں لیا اور نقاب سے ان کو گھور کر بولی. خبردار اس بچی کے نزدیک بھی آئے تو. بہت تیز ہے تو، بہت زبان چلتی ہے تیری. ابھی تجھے بتاتا ہوں. یہ کہتے ایک نے اس سے بچی کو چھین کر دوسرے آدمی کو دی. آپی چھوڑو اسے. خدیجہ چیخی تو اس آدمی نے اس کے چہرے سے پہلے نقاب کھینچا، پھر ایک تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تو وہ نیچے زمین میں جا گری اور اس کا ہونٹ پھٹ گیا. واہ رے، تو بہت خوبصورت ہے، تجھے تو میں تھا. اس سے پہلے یہ آدمی آگے کچھ کہتا فضا میں گولی چلنے کی آواز آئی جو اس آدمی کے سر پہ لگی اور وہ زمین پر جا گرا. گولی کی آواز سے خدیجہ کی چیخ نکلی جبکہ بچی بے ہوش ہو چکی تھی. دوسرا آدمی جیسے ہی چونکنا ہو کر وہاں سے بھاگنا چاہا تو شہریار نے آگے سے دروازے کو توڑتے اس کا نشانہ لیا جو اس کے دل کے مقام پہ جا لگا اور وہ بھی زمین پوش ہوا. خدیجہ نے حیرت سے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی. شہزادے جیسی آن بان رکھنے والا وہ شخص اپنی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں گن پکڑے، چہرے پر بلا کی سختی لیے. خدیجہ کا دل دھڑکا گیا تھا. شام کے سائے ابھی اتنے نہیں ڈھلے تھے، اس لیے اندر اندھیرا نہ ہونے کے برابر تھا. شہریار اندر آ کے ایک آدمی کے ماتھے پر گن جبکہ اپنا پاؤں اس کے دل کے مقام پر رکھا جہاں گولی لگی ہوئی تھی، اور وہ درد کی شدت سے کراہ رہا تھا کہ اس کے پاؤں رکھنے سے درد کی شدت میں اضافہ ہوا، پر وہ جا کر بھی چیخ نہیں سکتا تھا کیونکہ ایک گن اس نے اس کے منہ میں رکھی ہوئی تھی. بتا، کس نے بھیجا تجھے؟ کس کا آدمی ہے تو؟ بتا. شہریار نے گن کا دباؤ ڈالتے کہا تو اس آدمی کا اشارہ اس کی گن کی طرف تھا جو اس کے منہ میں ڈالے کھڑا تھا. شہریار نے گن نکال کر پوچھا تو وہ بولا، نہیں بتاؤں گا. تو مجھے جان سے بھی مارتے نہیں بتاؤں گا. شہریار کو اس پہ غصہ آیا تو اس کے ماتھے پر جو گن رکھی تھی اس کا ٹریگر دبا دیا. ایک بار پھر گن کی آواز گونجنے سے خدیجہ کی چیخ گونجی جس نے ڈر سے اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچی. پہلا آدمی جس کے سر کا نشانہ لیا تھا وہ موقع پر ہی مر گیا تھا. اب شہریار کا رخ خدیجہ کی طرف تھا. وہ اس کے پاس نیچے بیٹھا اور اس کے ڈرے سہمے چہرے کی طرف دیکھا جس کا خوف سے وجود کانپ رہا تھا. رونے سے ناک سرخ ہو چکی تھی جو شہریار کو بہکا رہی تھی. ہونٹوں کا کنارہ جہاں سے ہلکا سا خون جمع ہوا تھا شہریار کو ایک بار پھر غصے میں مبتلا کر گیا جو ضبط کرتے اس سے مخاطب ہوا. تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز سے خدیجہ نے آنکھیں کھولی اور ڈر سے اسے دیکھنے لگی. شہریار نے اسے خود سے ڈرتے دیکھ کر نرمی سے پوچھا. مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں بچانے آیا ہوں. چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں. شاباش، آ جاؤ. شہریار کے پیار سے مخاطب کرنے سے خدیجہ کو کچھ حوصلہ ملا تو اس نے نیچے سے اس کا نقاب اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا جسے پہن کر خدیجہ نیچے سے اٹھی اور شہریار نے بچی کو بھی نیچے سے اٹھایا اور دونوں کو لیتے باہر چل دیا. شہریار نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سے پانی کی بوتل لے کر بچی پہ پانی کی چھینٹے مارے جو ہوش میں آ چکی تھی. دونوں نے اس کے ہوش میں آتے سکھ کا سانس لیا. شہریار نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر بولا، آپ دونوں یہی بیٹھو، میں ابھی آیا. اس کے جانے کا سن کر خدیجہ ڈر کر بولی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟
اس کے مخاطب کرنے پر گھنی مونچھوں تلے اناپی لبوں پر مسکراہٹ آن ٹھہری، جس کو دیکھتے خدیجہ شرمندگی سے نظریں نیچے کر گئی۔ پر یہ بھی سچ تھا، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میں گاڑی لوک کر کے جا رہا ہوں، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ خدیجہ ڈر سے اس کی بات مانتے سر ہلا گئی۔ اس نے لاشوں کو جنگل کے پیچھے آگ لگا دی۔ کچھ دیر میں کام ختم کر کے جب گاڑی کے پاس آیا تو خدیجہ کو گاڑی میں روتا پایا۔ شہریار نے گاڑی میں بیٹھتے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہمارے ماما بابا پریشان ہو رہے ہوں گے، ہم کہاں ہیں اور گھر کب تک جائیں گے؟ اس کے پوچھنے سے خدیجہ نے اپنے آنسو پونچھتے بچی کو گود میں لیے بولی تو اس معصوم بچی نے کہا، آپی اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، بھائی نے ہمیں بچایا ہے نا، وہ ہمیں جلدی گھر بھی چھوڑ دیں گے۔ بچی کی بات پر دونوں مسکرا اٹھے۔ بالکل لٹل ڈول، ہم ابھی آپ دونوں کو ہی سلامت گھر چھوڑ دیں گے۔ واہ بھائی، آپ کی مسکان بہت خوبصورت ہے اور یہ ڈمپل سو کیوٹ۔ شہریار کی مسکراہٹ دیکھ کے اس نے کمنٹ پاس کیا تو وہ مسکرا کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، جبکہ خدیجہ اس سے گھورنے لگی۔ شہریار مرر سے اس کی گھورتی آنکھیں بچی پہ جمے دیکھ کے مسکرا دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ سفر گزرا تو اس نے ایک بیکری کے آگے گاڑی روکی اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر خدیجہ کو دیا، جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس میں کچھ سنیکس اور سینڈوچ ہیں، تم بھی کھا لو اور اسے بھی کھلا دو، جانے کب سے بھوکے ہو دونوں۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی ہمیں بھوک ہے۔ اوکے، آپ کو نہ صحیح، پر لٹل ڈول کو بھوک لگی ہوگی، اسے کھلا دے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہریار دوبارہ گاڑی میں جا بیٹھا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ عدنان صاحب اور حماد مایوس ہو کر ابھی گھر لوٹے ہی تھے کہ گھر میں کچھ لوگوں کو باتیں کرتا دیکھ ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ ہائے ہائے اسما بہن، تیری بیٹی اپنے باپ بھائی کے منہ پر کالک مل کے بھاگ گئی، اپنے کسی یار کے ساتھ کیسے حجاب پہن کے بی بی بنی پھرتی تھی، لکھوا لو مجھ سے، اس کی دوستوں نے ساتھ مل کر نکاح پڑھوایا ہوگا، بھگانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ اب مگرمچھ کے آنسو بہا کر ہمدرد بن رہی ہیں۔ میں نہ کہتی تھی تیری بیٹی اور اس کی دوستیں ایک دن کوئی گل کھلائیں گی، آج تجھے پتہ چلا نا؟ اس عورت کی ابھی گل افشانی جاری تھی کہ زیفہ بھڑکی۔ بند کرے اپنی بکواس، اگر ہم نے اسے بھگایا ہوتا تو یہاں نہیں کھڑی ہوتی۔ دوسروں کی بیٹیوں پہ طنز کرنے کے بجائے اپنی اولاد کو سنبھالیں، کسی کے دکھ تکلیف میں اسے دلاسا نہیں دے سکتے تو طنز بھی مت کریں۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے قریب رکی، خدیجہ بچی کو لے کر اندر جانے لگی تو شہریار نے اس کو روکا۔ رکو، تم پتہ نہیں اندر حال کیسا ہے، رات بھی ہو چکی ہے، میں ساتھ چلتا ہوں۔ شہریار کے کہنے پر خدیجہ رک گئی اور دونوں اندر چل دیے۔ خدیجہ راستے میں کھڑے اپنے بھائی اور باپ کو دیکھ کر بولی، پاپا۔ دونوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو خدیجہ بچی کو نیچے اتارے ان کے پاس آ گئی۔ خدیجہ میرا بچہ، کہاں چلی گئی تھی تم؟ کون تھے وہ لوگ؟ مجھے نہیں معلوم پاپا۔ خدیجہ ان کے سینے سے لگی روئی جا رہی تھی۔ عدنان صاحب اسے لے کر اندر آ گئے۔ حماد شہریار کو پہچان گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد اس نے سارا واقعہ بتایا تو وہ اسے بھی لے کر اندر آیا۔ لو جی، آ گئی آپ کی بیٹی گل کھلا کر۔ بند کرے اپنی بکواس، کب سے سن رہا ہوں میں، مجھے اپنی بہن پر پورا اعتبار ہے۔ اچھا، ذرا اپنی بہن سے پوچھو، اس لڑکے کے ساتھ ابھی آئی ہے نا، کون ہے یہ، کیا لگتا ہے اور اس وقت اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اس نے میری بہن کو بچایا ہے، یہ جانی مانی ہستی سیراب یزدانی کا بھائی ہے۔ حماد نے انہیں سب بتایا جو اسے شہریار نے بتایا تھا۔ مسز عدنان اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دے کر اسے سینے سے لگائے پیار کرنے لگی۔ بس کرو، ہم سب سمجھتے ہیں یہ کہانیاں کسی اور کو جا کے سنانا، اور اگر مان لو یہ لڑکا ٹھیک بھی کہہ رہا ہے، پر تمہاری بہن سے اب کون بیاہے گا؟ پورا دن غائب اور رات کو ایک غیر مرد کے ساتھ۔ اس عورت کی بات کو سن کر سب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جس کو جو سوچنا ہے سوچ لے، میں نے انسانیت کی نظر ان کی ہیلپ کی۔ اس پورے ہال میں شہریار کی آواز گونجی، بس کرو میاں، یہ کتابی باتیں ہم سے نہ کرو۔ وجہ جو بھی ہو، لڑکی سب کی نظروں میں مشکوک بن گئی، اور یہی بات سچ ہے۔ اب ایک پورا دن کی غائب لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ تم بتاؤ، تم کرو گے اسے شادی؟ یہ بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، بات یہی سچ ہے۔ عدنان، تیری بیٹی ایک بد کردار۔ خبردار خبردار، جو کسی نے بھی اسے کچھ کہا، وہ تو میں آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، میرے صبر کو مت آزمائے کہ میں بھول جاؤں کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں۔
मैं गवाही देता हूँ ये लड़की पाक दामन है। जैसे ये अपने माँ बाप के घर से निकली थी बाकिरदार, वैसे ही लौटी है। इस पे जो कीचड़ उछालेगा मैं उसकी ज़बान खींच लूँगा। शहरयार की धाड़ पर एक बार तो औरत डर कर फिर अपना एतमाद बहाल करते बोली, बेटा जी अगर इतनी ही पाक दामन है तो बोलो, करोगे इससे निकाह? खदीजा की आंखों से आंसू जारी हो गए। मामा पापा हम भागे नहीं हैं, हम सच्ची कह रहे हैं। अगर ये टाइम पे ना पहुंचते तो ये बच्ची और मैं जिंदा न रहते। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमें ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत मत करें, ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। खदीजा ने हिचकियों के दरमियान अपने माँ बाप से इल्तजा करनी चाहिए थी ताकि वो लोगों की बातों में ना आए। अंकल प्लीज़ हमारा यकीन करें। शहरयार ने भी अदनान से इल्तजा की तो वो बोले, बेटा मुझे तुम पे और अपनी बच्ची पे पूरा यकीन है, पर मैं दुनिया वालों की बातों को भी झुटला नहीं सकता। मेरी बेटी पाक दामन हो के भी बदनाम हो गई। तुमने तो इसकी गवाही दे दी पर फिर भी इसे कोई नहीं थामेगा। डैड ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं अपनी बहन का करूँगा अच्छी जगह रिश्ता। मुझे किसी को भी सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बहन कैसी है। हमाद ने खदीजा को सीने से लगाए कहा तो इसे कुछ सुकून मिला। तुम्हारे कह देने से कुछ नहीं होता। बोल ना लड़के, चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देता? कह तो इसका हाथ थामेगा। अदनान साहब बेबसी से शहरयार को देख रहे थे। अंदर से इन्हें खौफ भी था। इतने में शहरयार की आवाज़ गूंजी, हाँ मैं थामूंगा इनका हाथ, मैं करूंगा निकाह। पर आपको एक बात बताऊं, मैं खदीजा से इश्क करने लगा था। सोचा था अपने भाई के साथ आके अपने लिए रिश्ता मांगूंगा, पर आपने तो मेरा रास्ता आसान कर दिया। आप लोग फसाद मचाकर अपनी इज्जत खुद खराब करते हैं और फिर दूसरों को नीचा दिखाते दिखाते इनका भला कर जाते हैं, जैसे मेरा किया। मैं इकरार करता हूँ सबसे, मैं शहरयार चौधरी खदीजा अदनान से बेपनाह इश्क करता हूँ और आज अभी इससे निकाह करूँगा। शहरयार की बात पे खदीजा सब हैरत से आंखें खोले इसको देख रहे थे। अदनान साहब के दिल को सुकून मिला। अभी औरत कुछ और कहती, शहरयार इन्हें मुँह खोले देखकर धाड़ा, बस आप आगे कुछ नहीं बोलेंगी? आप चाहती थी ना मैं खदीजा से निकाह करूं, तो अब आप इसकी गवाह बनेगी। शहरयार ने इस औरत को तंजिया कहा तो वो जल भुन गई। इन्हें लगा शहरयार इनकार कर देगा और इनको और मौका मिल जाएगा खदीजा को बदनाम करने का, क्योंकि इनकी बेटी मशहूर थी इस मामले में। बॉयफ्रेंड बनाना इसका शौक था। सब लोग इस औरत को समझाते, पर इसका कहना था कि आजकल ये आम है। जब सब अदनान साहब की औलाद की तारीफ करते और इनकी मिसालें देते तो सुनकर आग लग जाती। आज इन्हें मौका मिला था अदनान और इसकी औलाद को बदनाम करने का, पर शहरयार ने इनको नाकाम कर दिया। इसलिए चलने करने के अलावा इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। शहरयार ने बिजान को फोन करके सारी सूरत हाल का बताया तो खान के साथ आने का बोलकर कॉल कट कर दी, क्योंकि सहराब का फोन स्विच ऑफ था। हमाद ने आयजा नूर से बोलकर खदीजा को अंदर फ्रेश होने के लिए भेज दिया और बच्ची के माँ बाप को फ़ोन करके इतला दी, जो कुछ ही देर में आके इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए बच्ची को ले गए। और इन लोगों के जाते भी जान भी आ गई और अदनान ने मौलवी साहब को बुला लिया। अस्मा जाओ खदीजा को लेकर आओ। जी। मिस्टर अदनान के कहने पर वो खदीजा के कमरे की तरफ चल दी जहाँ इसकी दोस्तें बैठी हुई थीं। अस्मा बेगम के अंदर आते ही खदीजा बोली, मामा हमें ये निकाह नहीं करना प्लीज़, आप हमारी बात का यकीन करें, हमने कुछ नहीं किया। खदीजा की बात सुनकर अस्मा बेगम बोली, देखो बेटा हमें तुम पे यकीन है, पर लोगों की ज़बान हम नहीं पकड़ सकते और शादी तो तुमने एक दिन करनी है। शहरयार देखा भाला लड़का है तो बेहतर है तुम अब खामोशी से निकाह कर लो और चलो, नीचे तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मामा, खदीजा ने बेबसी से कहा तो ज़ैफ़ा बोली, आप टेंशन ना लें आंटी, मैं इसका थोपड़ा सेट करके अभी लाती हूँ। मिसिज अदनान ज़ैफ़ा की बात पर मुतमईन होती कमरे से बाहर चली गई। चलो दीजा, अब शराफत से उठ रही हो कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवाऊँ? ज़ैफ़ा की बात सुनकर जहाँ आयजा नूर का कहका छूटा, वहाँ खदीजा, मीरब और रुबा शर्म से सुर्ख पड़ गई। वहाँ चारों ने चार इसे भी उठना पड़ा। कुछ देर में खदीजा एक सुर्ख नेट के फ्रॉक में, जिसके दामन और बाजू पे गोटे का काम किया हुआ था, साथ में चूड़ी पजामा पहने बिना मेकअप के बहुत प्यारी लग रही थी। क्या है जी, मेरा निकाह है, रुखसती नहीं जो तुमने मुझे सुर्ख जोड़ा पहना दिया है।
ज़्यादा पटर पटर नहीं बोलो, नहीं तो आज ही रुखसत करवा देंगे जनाबा जी। मेन चीज़ निकाह होता है और आपकी दादी सास खुश हो जाएंगी इस जोड़े में देख के कि क्या है ना, पुराने ज़माने की औरत है। और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे हाथ पांव बांधूं तो शराफत से यहाँ बैठ जाओ। ज़ैफ़ा ने ड्रेसिंग के स्टूल की तरफ इशारा किया। नहीं यार, सब लोग क्या सोचेंगे, इस इंतज़ार में थी तभी इतनी बनसवर के आई हूँ। प्लीज़ ऐसे ही कपड़ों से बहुत हो गया, बस करो जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खालदा आंटी पहले भी बहुत बोल चुकी हैं, मुझे ऐसे देखेंगी तो ज़्यादा बातें बनाएंगी। हाँ तो इन्हें और जलाएंगे ना, बहुत बकवास कर रही थी। पर शहरियार भाई ने खूब सुथरी की है और ज़्यादा नहीं कर रही, बस लिपस्टिक लगा रही हूँ। पर वर कुछ नहीं, चुप बैठो तुम। अच्छा ठीक है यार, पर लाइट कलर ले लो, ये रेड रहने दो, मुझे अच्छी नहीं लग रही। प्लीज़ खदीजा ठीक कह रही है, तुम लाइट लिपस्टिक ले लो। अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है तो ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, तुम ये ब्राउन वाला ले लो, लाइट भी है। रुबा ने ड्रेसिंग टेबल से लिप ग्लॉस उठाते हुए कहा तो ज़ैफ़ा भी मानते इस लाइट कलर का लिप ग्लॉस लगाते, इसके सर पे हम रंग हजाब किया और दुपट्टा इसके गले में डाले, सबके साथ नीचे ले आई। जहां भी जान के साथ शहरयार बैठा हुआ था, अदनान साहब ने अहमद और शामिर को भी बुला लिया था। शामिर ने आने से पहले तो इनकार कर दिया, पर अहमद साहब ने कहा इसे वहां लड़के के गवाह के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि इसका भाई कहीं मसरूफ है तो वो नहीं आ सकेगा, नहीं तो इसकी मिन्नतें नहीं करते। तभी वो भी मान गया, इसलिए वो भी बेजार सा शहरयार के साथ बैठा था। खदीजा को देखते शहरयार के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। खदीजा का तो शर्म के मारे सर भी उठाया नहीं जा रहा था और कुछ खौफ से पूरा जिस्म भी कांप रहा था। रुबा का हाथ मजबूती से पकड़े सीढ़ियां उतर कर नीचे आ रही थी। इसका दिल क्या दोबारा अपने कमरे में भाग जाए। नजरें नीचे होने के बावजूद भी वो शहरयार की बेताब निगाहें खुद पे महसूस कर रही थी। सबने मिलकर इसको अदनान साहब और हमाद के बीच बिठाया और इसके आते ही बिजा ने सबसे पहले इसके सर पे लाल चुनरी ओढ़ाई तो इसकी धड़कन बेतरतीब हुई। इसने कांपते वजूद के साथ अपने बाप का हाथ थामा, जिसे महसूस करके अदनान साहब ने इसके गिर्द घेरा डाला। बिजा ने माशाल्लाह कहकर इसके सर पे प्यार किया और अपने खानदानी कंगन इसे पहनाए, जिसे देखकर खालदा औरत जो तंज कर रही थी जल भुन गई। बीजान जैसे ही बैठी तो अदनान साहब ने मौलवी साहब को निकाह पढ़वाने को बोला। खदीजा वल्द अदनान, आपका निकाह शहरियार चौधरी से सिक्का राइजल वक्त 25 लाख हक महर पर साथ तय पाया गया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? खदीजा ने पहले अपने बाप की तरफ देखा तो उन्होंने आंखें मीचकर इसे इजाज़त दी, तो फिर अपने भाई की तरफ देखा तो इसने भी सर पे हाथ रखकर इजाज़त दी। तो इसने अपने सब दोस्तों की तरफ देखा जो खुशी से इसे देखते इसे हाँ बोलने का इशारा कर रही थी। तो इसने मुस्कुराकर अपनी धीमी आवाज़ में कहा कबूल है। मौलवी साहब के 3 बार पूछने से इसने कहा कबूल है, कबूल है। इसके कबूल है बोलने से शहरयार के साथ खदीजा के घर वालों को भी दिली सुकून मिला। अब मौलवी साहब का रुख शहरयार की तरफ था। शहरयार वल्द चौधरी, वल्द आपका निकाह खदीजा अदनान के साथ तय पाया गया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। शहरयार के भी 3 बार कबूल है कहने के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। शहरयार बड़े शान से सोफे पर बैठे हुए खदीजा को नज़रों के हिसार में लिए बड़ी फुर्सत से इसे देख रहा था, जो अपनी दोस्तों के सीने से लगी रो रही थी। कुछ देर में इसके साथ क्या से क्या हो गया था। खदीजा अदनान से खदीजा शहरयार बनने में कुछ पल लगा था। इतने सालों से अपने नाम के साथ अपने बाबा की जगह किसी और का नाम पे इसे जहाँ खुशी मिली वहाँ इसका दिल भी भर आया। ये वक्त लड़की के लिए बहुत ही नाजुक होता है, इसे चाहे जितना भी चाहने वाला मिल जाए, बाप का नाम जुदा होना सीने से दिल निकलने के बराबर होता है। पर ये अल्फाज भी दिल को चीरने के लिए काफ़ी है, पर यही दुनिया का दस्तूर है। एक दिन बेटी को अपने बाप का घर, इसका नाम छोड़कर किसी और के साथ जाना पड़ता है। खदीजा के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल था, पर अल्लाह सब्र और हौसला देने वाला है। हम इसके हुक्म से इनकारी तो नहीं कर सकते, और निकाह तो अल्लाह की निशानियों में से एक है, इसे भी वक्त लगेगा पर संभल जाएगी। अल्लाह पाक हर बहन बेटी के नेक नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। निकाह की रस्म होते ही शामिल तो चला गया था, पर बाकी सब भी बारी बारी चले गए। पर अहमद साहब ने जल्दी जल्दी में मिठाई और निकाह के लिए छवारे मंगवा लिए थे, जो सब में हमाद और आयजा ने तकसीम किए। अदनान साहब का इरादा सुबह देग भी बांटने का था, वो तो अभी मंगवा रहे थे, पर बीजान ने मना कर दिया और सब बारी बारी अपने घर को चले गए। बीजान और शहरयार भी इजाज़त लेते घर के लिए निकल गए।
इनको रात में जल्दी सोने की आदत थी, वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती थी, इसलिए ना चाह कर भी मिसेस अदनान ज़्यादा देर असरार न कर सकी और वो इजाज़त लेती चल दी। इस वक्त सब खदीजा के कमरे में थी और रात 9 बजे का वक्त था। सब खाना खाने के साथ साथ बातें भी कर रही थी। हाय दीजा, तेरे साथ तो फिल्मी स्टाइल वाला सीन हो गया। पहली मुलाकात में लड़का गाड़ी से टकराया, फिर वो किडनैपिंग सीन और अब निकाह, और इस दौरान सबने एक बात तो नोट ही नहीं की। आज हमारी मिसनी आयशा नूर हमाद भाई के सीने से जा लगी और वो भी बीच सड़क पर। उफ, क्या सीन था। आयशा नूर ज़ैफ़ा की बात सुनते शर्म से सुर्ख पड़ गई। इसका दिल चाहा कि ज़ैफ़ा के मुंह पर टेप लगा दे या खुद कहीं गायब हो जाए। ज़ैफ़ा की बात सुनते सब होटिंग करने लगी। ओहो, तो पहले बताती ना, मेरे साथ इसका भी निकाह पढ़वा देते। खदीजा इसे भी अपने साथ घसीट कर बोली। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है और ना ही मैंने जानबूझकर ऐसा किया। वह बस दीजा की टेंशन में इस वक्त होश नहीं रहा था, इसलिए बस। हाय मेरी लाल गुलाबो, अभी से ही लाल टमाटर हो रही है, आगे क्या बनेगा तेरा। बस करो बेशरम, और कितना तंग करोगी बेचारी को। मीरव ने इसके कंधे पर चपत मारते कहा तो वो अपना बाजू सहला कर रह गई। वैसे यार, मैंने सुना है अगर दुल्हन का जूठा खाओ या इसके सर की चुनरी खुद पर ओढ़ी जाए तो दूसरी लड़की की शादी भी जल्दी हो जाती है। क्या कोई जानता है इस बात को? ज़ैफ़ा के सवाल पर रुबा बोली। बिल्कुल ठीक कहा, ये सच है और इस रस्म को सराइकी लोग बहुत मानते हैं। ऐसा क्या, फिर तो हम भी ये रस्म अदा करेंगे। ये कहते साथ ही ज़ैफ़ा ने बर्फ़ी उठाकर सबसे पहले खदीजा को आधी खाने का बोला और फिर ज़बरदस्ती रुबा के मुंह में सारी डाल दी, जो पूरी बर्फी मुंह में डाले इसे घूर रही थी। पर वो हंसते हुए दोबारा ये अमल करती मीरव के मुंह में डाल गई, जिससे वो खांसने लगी। खदीजा का जो जूठा पानी का आधा गिलास टेबल पर रखा हुआ पड़ा था वो इसे दिया, जो एक ही सांस में पी गई। कैसा लगा? यानी अब आप दोनों की तरफ से भी जल्दी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ज़ैफ़ा की बात पर रुबा मुँह खोले इसे देखे गई और सदमे की कैफियत में बोली। मतलब तुमने जान के ऐसा किया, बदतमीज लड़की। मुझे कोई शौक नहीं है जल्दी शादी करने का। अरे ऐसे कैसे शौक नहीं है? और इसके लिए शौक नहीं, एक अदद मुंडा शामिर भाई जैसा होना चाहिए, और लड़की बालिग जो कि आप हैं। ये शामिर का यहाँ क्या जिक्र? अरे भाई, जहाँ रुबा वहाँ शामिर भाई का नाम ना हो, ये तो नामुमकिन बात है। बचपन के दोस्त हो यार। कोई दोस्त वस्त नहीं है, मैं इसकी खाला हूँ दूर की, जिसको वो मानते ही नहीं। अल्लाह के वास्ते अब ये खाला वाला जिक्र मत करना। कहा ये लड़की इस खूबरू नौजवान के साथ खाला का नाम जोड़ के इसकी पर्सनैलिटी ख़राब कर रही है। अच्छा बस, इस कड़वे कसीले का नाम लेकर मेरा मूड ऑफ मत करो, वरना मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी नहीं लेते, पर हमारी एक तमन्ना पूरी करने दे। क्या? ज़ैफ़ा के सवाल पर रुबा ने पूछा तो वो बोली, एक मिनट। ज़ैफ़ा ने खदीजा के सर पर इसे चुनरी उतारकर रुबा को पहनाई। हमें रस्म पूरी करने देना, अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपको भी अपने घर वाला करे, आमीन। ज़ैफ़ा के साथ सबने आमीन बोला। तो ना जाने क्यों रुबा की आंखों से एक आंसू निकलकर इसकी गाल को भिगो गया, जिसको साफ करते इसने बड़े आराम से अपने सर से चुनरी उतार दी। सबने इसकी कैफियत समझते इससे लिपट गई। ओफो नालायक लड़कियां, मेरा दम घुट रहा है, पीछे हटो मुझसे। हाँ हाँ, अभी अब आप खुद हमें तंग करने पे मजबूर कर रही हैं, फिर मुझसे गिला मत करना। रुबा की बात का मतलब समझते हुए इसने इसके एक सर पे लगाई। यूं ही हंसी मजाक में इनकी महफिल जमी रही। कुछ देर बाद सबने एक फ्रेंड सेल्फी ली और आयशा नूर ज़ैफ़ा के साथ अपने घर को चल दी और रुबा मीर को शामिर लेने आया था। इनका घर पास था तो वो पैदल चले गए। ये रात 12 बजे का वक्त था। खदीजा अपने दोस्तों के जाने के बाद कमरा समेट करके अभी चेंज करने जाती कि इसे अपने कमरे की खिड़की से किसी के कूदने की आवाज़ आई। इससे पहले इसकी चीखें निकलती सामने वाले शख्स ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिसको देखकर खदीजा ने आंखें हैरत से खोले देखा। आवाज़ नहीं निकालना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शहरयार की बात पर खदीजा ने आंखें मीचकर इसे यकीन दिलाया तो इसने इसके मुंह से हाथ हटाया। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? खदीजा ने इसको घूरते कहा तो शहरयार इसके करीब होके बोला, अपनी बेगम को निकाह की मुबारकबाद देने आया हूँ। इसके करीब आने और बोलने से शहरयार की सांसें खदीजा के चेहरे से टकराईं तो इसे होश आया। वो बिना दुपट्टे की खड़ी है, जिससे इसकी साफ शफाफ गर्दन शहरयार को बहका रही थी। इसने जल्दी से बेड की तरफ लपक कर अपना दुपट्टा उठाना चाहा तो शहरयार ने इसका हाथ थामे रोका और इसको बाहों में उठाए बेड पर लेकर लेटाया।
खदीजा इस आफत पर बौखलाई इसके सीने में मुंह छुपा गई, जिससे शहरयार मसरूर सा मुस्कुरा दिया और इसको बेड पर लेटाकर खुद इस पर साया बनकर इसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर शर्मा कर खदीजा ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिए, जिसको देखकर शहरयार ने कहका लगाया और फिर इसके चेहरे से हाथ हटाया और प्यार की पहली महर इसके माथे पर सबत करते बोला, निकाह मुबारक मेरी ज़िंदगी। मुझे ये तो मालूम था कि मैं एक दिन तुम्हें पालूंगा, पर इतनी जल्दी मेरी दुआ रंग लाएगी ये कभी नहीं सोचा था। शहरयार इसके पहलू में लेटते हुए बोला तो हैरत से वो इसे तकने लगी। शहरयार ने इसे उठाकर बेड पर बिठाया और अपनी पॉकेट से एक खूबसूरत हार्ट की शेप में लॉकेट निकाला और इसकी गर्दन में पहनाते हुए इसने अपने लब इस लॉकेट पर रख दिए तो खदीजा इसके नरम गरम लम्स और मुछों की चुभन से लर्ज कर रह गई। ये हमारी मामा की निशानी है, जिसे हमने बहुत चाह से संभाल कर रखा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसकी हिफाजत करेंगी। शहरयार की बात पर खदीजा ने नजरें नीची किए अपने दुपट्टा उठाने लगी तो वो जो इसके होश रबा सरापे में खोया हुआ था, इसके हाथों की हरकत पर इसका सकता टूटा और होश में आते ही इसका हाथ रोककर बोला, हमने आपके बाल देखने हैं, खुले बालों में आप कैसी लगती हैं ये देखना है। ये कहते साथ ही शहरयार ने इसके बालों से कैचर उतारे दूर उछाला तो वो किसी आबशार की तरह खुलते चले गए, जो काफ़ी लंबे और सुनहरी थे। दोनों की धड़कन इस वक्त बेतरतीब हो रही थी। शहरयार की इतनी कुर्बत पे खदीजा की जान हवा हो रही थी, जबकि सुर्ख लिबास में इसका दोधिया वजूद चांदी की तरह चमक रहा था, जिसे देखते वो बेखुद होते इसके लबों के किनारे पर जहाँ हल्का सा निशान थप्पड़ की वजह से बन गया था, वहाँ अपना लम्स छोड़ते इसे कपकपाने पर मजबूर कर गया। गुलाब की पंखड़ियों की मानेद होंठ, जिसके ऊपर छोटा सा तिल था, इसे अपने होठों से महसूस करते इसके लबों पे झुक गया, जबकि एक हाथ इसके रेशम बालों पे जबकि दूसरा इसके कमर से पकड़े अपने नज़दीक कर गया। खदीजा के लिए इसकी छोटी मोटी जसारतें सहना मुहाल हो रहा था। कहाँ इसका शिद्दत भरा लम्स अपने होठों पे महसूस करके हैरत से आंखें खोले वो इसे खुद से दूर करने लगी, जो इसकी मज़ाहमत पर अपनी शिद्दत में जुनूनियत लाते इसे चंद मिनट में ही निढाल कर गया, जिसकी वजह से वो अपनी तमाम तर मज़ाहमत तर्क करती इसके सहारे पर आ गई थी। जबकि इसको हथियार डालते देखकर वो मुस्कुराता धीरे से इससे अलग हुआ था और खदीजा, जिसे लगा था अब वो नहीं बचेगी, इसके आज़ादी बख्शते ही इसके सीने पर सर रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। जारी है तो प्यारी रीडर, कैसी लगी आज की एपिसोड? फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।